start back. In the last session, we have done the summary of the chapter, Financial Management. And today I'm going to start it along with NCERT. If you see on your screen, सबसे पहले तो on the left hand side, if you see, these are the questions which are given, and these may be the questions which will take form in different ways. For example, it is given, explain the meaning of business finance, describe financial management, its role in an enterprise, the objectives of financial management and how they can be achieved, importance of financial planning, capital structure. This capital structure doesn't come as a meaning, but it comes as fill in the blanks or something like that. The factors that affect the capital structure, fixed and working capital, and of course, analyzing the requirement, यानी कि the factors that affect fixed or working capital. ये जो स्टार बना के मैंने दिया है, these are some of the questions which come directly or indirectly. It's not that कि हमेशा ही indirectly आता है, but certain times it may be indirect. जैसे first question है meaning, it comes as direct, second comes as direct, लेकिन जो आपका capital structure है या फिर factors है, they have normally been asked as an indirect question. That is a case-based study. This is a case which tells that how Tata Steel acquired the Chorus. मतलब उन्होंने Chorus को कैसे acquire किया. Now what we have to understand in this is ये जो 4 points दिए हैं, ये points है हमारे. So the question says that Tata Steel has acquired Chorus, a British steel company, जिसका worth था 88.6 billion in 2007. And a financial decision of this magnitude, मतलब इतना बड़ा, इसके पीछे उन्होंने क्या क्या किया था. तो Tata Steel raised a debt of 88 billion to finance the transaction. ये पहला. The deal will be paid by Tata Steel, a special purpose vehicle set up for this purpose. This SPV received funds from Tata Steel routed through a Singapore subsidiary, another company of Tata Group, Tata Sons, and invested $1 billion for preference share along with Tata Steel, which will invest in an equal amount. यानी कि यहाँ पर जो हमने पढ़ा है on a broader scale, it is equity यहाँ पर plus debt. ऊपर उन्होंने जो लिया है वो है debt और नीचे जो है वो है equity. यानी they have financed this. The second says Tata Steel, the acquirer company, arranged about 36.500 crores rupees to finance a takeover. यही उन्होंने invest किया है. They raised this amount through debt or equity or a combination. Some amount also came from internal accruals, मतलब आपका retained earning. This financing decision affected the capital structure of Tata Steel. Needless to emphasize, decisions like this affect the future of organizations. एक ये क्वेश्चन आता है जो अभी हम आगे भी पढ़ेंगे. These decisions are almost irrevocable. मतलब हम इनको वापस नहीं कर सकते. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है that any decision that you take in context of finance, they are irreversible. उनको उनमें जरा सा भी उतार चढ़ाव जो है वो कंपनी को प्रॉफिट या लॉस में लेकर आता है. So we have to be very careful. ये पेपर में भी आता है. That means the case says these decisions require careful planning and understanding of resultant capital structure, risk and profitability. क्योंकि कंपनी अच्छी है, शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट मिलता है. कंपनी अच्छी है,
तो जो कंपनी में काम कर रहे हैं दे आर ऑल्सो बेनिफिटेड. दिस मीन्स they require business understanding of business finance, financial decision, financial risk, working capital. इन सबको देखना पड़ता है. Finance, as we say, is the blood of any business, and success depends on how well finance is invested in assets and operation, and how timely and cheaply the finances are arranged from outside or from within the business. और ये जो पूरा लिखा हुआ ना, this is actually the crux of the entire chapter. पूरे चैप्टर का एक सेंटेंस में यही मीनिंग है कि एक बिजनेस का जो उतार या चढ़ाव, एक बहुत अच्छे बिजनेस का अगर हम प्रॉफिट या लॉस को देखते हैं तो उन्होंने कहाँ उसको इन्वेस्ट किया है, देन फ्रॉम वेयर दे आर गेटिंग द फाइनेंस, मतलब कहाँ से वो फाइनेंस लेके आ रहे हैं, कहाँ उन्होंने इन्वेस्ट किया है, एंड हाउ चीप दे आर गेटिंग. ये आपका जो है, these are the one which decides the entire running of a business. और इसी को हम डिवाइड कर देते हैं into financial decision and investment decision. इसके अंदर डिविडेंड अभी डाला नहीं है. तो ये जो दो सेंटेंसेस है ये कह रहे हैं फाइनेंशियल डिसीजन एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन, यानी कि कहाँ हमें इन्वेस्ट करना है और कहाँ से पैसा हमें प्रोक्यूर करना. The money required for carrying out any business activity is called as business finance. Every business needs some or the other. It is needed to establish, run, modernize, expand, diversify. It is required for buying assets like machinery, factory, building, ऑफिसेस, ट्रेडमार्क, पेटेंट, टेक्निकल एक्सपर्टीज. यानी कि ये जो यहाँ पर लिखा हुआ बच्चे, दे आर ऑल कॉल्ड एज द फिक्स्ड कैपिटल. आई थिंक यू ऑल नो दिस, आई डोंट नीड टू टेल दिस. एंड ये जो नीचे लिखा हुआ है, दे आर ऑल द वर्किंग कैपिटल, जो हमें डे टू डे के लिए चाहिए. एंड अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट फाइनेंस इज thus very crucial for the survival and growth of a business. Now, what actually we have to do? ये तो हमारा वो है what is business finance. और जो दो तरीके के हमारे मनी है, एक हमारे को चाहिए फिक्स कैपिटल के लिए और दूसरा चाहिए होता वर्किंग कैपिटल के लिए. वर्किंग में we may be requiring it for certain purposes, it may be for a short or for mid. एंड जो हमारे फिक्स कैपिटल्स होते हैं नॉर्मली दे आर लॉन्ग टर्म कैपिटल्स. दिस वाज देयर इन योर 11th स्टैंडर्ड. ऑल फाइनेंस कम्स एट सम कॉस्ट. भाई आप अगर इक्विटी लेते हो, मतलब अगर आप अपने शेयर्स को मार्केट में ला रहे हो, तो भी आपको अपना कंट्रोल कम करना पड़ता है. तो दैट इज द कॉस्ट यू आर पेइंग. Secondly, you are also going to give some dividend. आप अपने प्रॉफिट को उनके साथ शेयर करने वाले हैं. Then for raising the capital from the equity, you also need to go through some procedures. Whereas when it comes to debt, अगर आप कर्जा ले रहे हो तो उसमें भी आपका कुछ कॉस्ट है, यानी कि आपको कंपनी की कोई चीज को गिरवी रखनी पड़ती है. यू नीड टू कोलेट्रल समथिंग. And secondly, you also need to pay the interest. And that is why it is very important that the finance is managed carefully. ना ही आप इक्विटी ज्यादा रेज कर सकते हो और ना ही आप डेट. So this means it is concerned with optimal procurement as well as the usage of finance. ऑप्टिमल मतलब बहुत ध्यान से, एट द चीपेस्ट एंड द लोएस्ट रिस्क. इट मीन्स procurement, different available sources of finance are identified, compared in terms of cost, associated risk. Similarly, the finance so procured need to be invested in a manner that the return from investment exceed the cost.
उस दिन आपको एक मैंने एग्जाम्पल दिया था कि देर आर 2 प्रोजेक्ट्स, इन वन द ROI इज आर, जो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो 10% है और दूसरे में 15% है. तो आफ्टर कैलकुलेटिंग द कॉस्ट, बट ऑन द ओवरऑल, अगर आपसे ऐसे ही पूछा जाए एंड दिस कम्स एज अ क्वेश्चन फॉर अ 3 मार्कर, बट यू डोंट नीड टू डू द एंटायर न्यूमेरिकल, आपको सिर्फ यहाँ ऊपर से देखकर बताना है विच इज बेटर. इट्स ऑब्वियस 15%. तो यानी कि आपको ये भी देखना है कि जो आप पैसा लगा रहे हो, क्योंकि इस पैसे को लगाकर इससे जो पैसा आएगा वो आप उन चीजों में यूज करोगे जो आपने फाइनेंसिंग के लिए शायद प्रोक्यूर किया है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 15% वाला ले रहे हो, इफ यू आर टेकिंग द 15%, इसके लिए आपने लोन लिया होगा या हो सकता है आपने इक्विटी रेस की होगी. तो देन यू नीड टू पे द डिविडेंड, then you need to pay the interest, and these comes from this only. It financial management aims at reducing the cost of funds procured, keeping the risk under control, and achieving the effective deployment of such funds. यानी कि लो रिस्क, लो कॉस्ट एंड मोर ROI. यानी कि लो रिस्क, कॉस्ट एंड बेटर ROI. ये हमारा बेसिक होता है दोनों का. देन it also aims at ensuring availability of enough funds whenever required, as well as avoiding idle finance. ये हमारा प्लानिंग के अंदर आ जाता है. This comes under the planning, कि ना तो हमारा जो पैसा है वो आइडल पड़ा होना चाहिए. कई बार क्या होता है, हमें मतलब कि when we are not properly analyzing the financial statements, then maybe there are retained earnings, maybe there are some money which is मतलब कि idle और हमने उसको छोड़कर बाहर से पैसा लिया. Should not be. And moreover, finance अगर आपका idle है, it will give you nothing. अगर आपका पैसा आपके पास भी है, मतलब मैं एक on a not in the form of an enterprise, even as a person, say you are having 5 lakh rupees. अगर आपने उस 5 lakh को if you have kept in a bank, that's actually an idle fund. That is safe. अब आप कहोगे मैम बैंक का पैसा idle? Yes. From the company's point of view, the money which is kept in bank is idle because वो कुछ काम थोड़ी कर रहा है. ज्यादा से ज्यादा आपको कितना इंटरेस्ट मिल जाएगा? Whereas if you are investing the same in some project, that may yield you better. Say for example, on an average, bank आपको 5 to 6% interest देता है, but you may be getting 22 to 25% if you're interest मतलब कि getting it on a project. वो भी आपको देखना है. That there should know that idle fund की जरूरत होती है for some uncertainties, लेकिन वो कितना, that has to be decided. Needless to emphasize, the future of a business depends on a great deal on the quality of its financial management. तभी हमने टाटा का पढ़ा है. टाटा अगर हम देखते हैं, if we talk about the case studies in reality, मैं आपके 12th स्टैंडर्ड के पेपर के बारे में बात नहीं कर रही हूँ. In reality, if you see all those companies, global companies, not Indian, all the global companies, which would include in Indian companies too, अगर आप उन कंपनीज में, टाटा इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंपनीज इन आवर कंट्री. अगर हम फ्रॉम द बर्थ देखें तो टाटा बिरलाज आर वन विच वर एस्टैब्लिश्ड इवन बिफोर द इंडिपेंडेंस. एंड दैट इज व्हाई अगर हम उनके केस को पढ़ते हैं तो वी अंडरस्टैंड कि स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच coming to this billion is because of financial management. So the role of financial management cannot be overemphasized because it has a direct bearing on financial health of a business. ये वाला जो है बेटा, ये वाला जो है,
दिस हैज कम इन योर, मतलब ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है, एंड दिस कम्स एज assertion, रीजन या फिर एनालिसिस ऑफ स्टेटमेंट, या फिर एनालिसिस ऑफ स्टेटमेंट मीन्स या तो जो ऊपर दिया है दिस इज द सेंटेंस, और जो नीचे दिया है दिस इज द रीजन, राइट। या तो आपको ये पूछा जाएगा कि जो ऊपर दिया है उसका ये नीचे रीजन है या नहीं, विच यू आर डूइंग, आई नो। या फिर आपको ये दोनों स्टेटमेंट दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, गलत है, दोनों सही है या दोनों गलत है। ये ऐसे आया हुआ है। The role of financial management cannot be overemphasized since it has a direct bearing on the financial health of a business. हमारे जो स्टेटमेंट्स होते हैं which you are doing in your accounts, that is PL, balance sheet, reflects a firm's financial position and its financial health. और ये सब कुछ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू सम फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन। और ये सब कुछ किससे होता है भाई? अगर आपका P&L है, लॉस में चल रहा है, तो व्हाई इट इज इन लॉस? सम डिसीजन इज रॉन्ग। if the profit has increased, then some decision is right. And definitely when you are talking about the capital investment, when you are talking about the long term investment, when you are talking about the assets, तो बैलेंस शीट में तो हमारा वही आता है, एक तरफ आपका पूरा एसेट, दूसरी तरफ आपकी सारी लायबिलिटी। तो इफ इट इज कमिंग विथ गुड प्रॉफिट, आपका बैलेंस शीट आ रहा है, दैट मीन्स द फाइनेंशियल डिसीजंस टेकन फ्रॉम बाय द फर्म हैज बीन गुड, राइट। अब ये जितने दिए हैं, all of them have come in the exam, nothing can be deleted, right? The size, अब वो कहते हैं कि the prominent examples, some prominent examples of aspects being affected could be, मतलब किस वजह से, the size and composition of fixed assets, मतलब 100 crores in fixed assets would raise size of fixed assets blocked by this amount. The quantum of current assets and its breakup into cash, inventory and receivables. आपका करंट एसेट्स क्या है? कैश, इन्वेंट्री और आपका रिसीवेबल है, उसको वो कितना है, मतलब व्हाट इज द प्रोपोर्शन विद एन इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट। अगर आपने एसेट में लगा दिया है, वो पैसा तो आपका ब्लॉक हो गया ना, वो पैसा तो ब्लॉक हो गया ना, आप इमीडिएटली तो वो लिक्विड नहीं होगा, इट वुड नॉट बी लिक्विडिफाई इमीडिएटली, मतलब वो आप उसको इमीडिएटली तो कैश नहीं कर सकते हो। सो देयर इज अ कमेंसुरेट इंक्रीज इन द वर्किंग कैपिटल। अगर आपने पैसा, मतलब आपके पास 1000 रुपए है, ठीक है, आपने उसमें से 800 रुपए को ब्लॉक कर दिया है, तो बाकी 200 रुपए रखकर आपको पूरा जो साल है वो गुजारना है। उसके अंदर आपके जितने भी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसे पूरा करना है। So the quantum of current assets is also influenced by the financial management decision. यानी it should not be blocked in such a manner कि आपका working capital ही नहीं है। In addition, decisions about credit, inventory management, debtors, creditors, ये भी आपका जो है current assets पर फर्क पड़ता है। The amount of, because in every company, you know, there might be sundry debtors, sundry creditors, and then there might be one which we may be writing as suspense account. कई बार आपके बैड डेब्ट्स कितने ज्यादा होते हैं, बैड डेब्ट्स आपके कितने ज्यादा होते हैं, दोज पीपल हु डोंट गिव, होता है, you need to understand those. The amount of long term and short term funds to be used. Financial management, among other decision, involves the proportion of long term and short term. Long term आपके रेज होते हैं फ्रॉम
डिफरेंट सोर्सेस। शॉर्ट टर्म आपके जो है थोड़े कॉस्टली पड़ जाते हैं, बिकॉज वो आपका शॉर्ट टर्म होता तो लोन्स पर ज्यादा जाता है। लोन मतलब कि आपका जो लॉन्ग टर्म है वो डिबेंचर्स पे जा सकता है, शेयर्स पे जा सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज द मिड टर्म, मतलब आपके मीडियम वाले लोन्स होते हैं। An organization wanting more liquid assets would raise relatively more amount on long term basis. There is always a choice between liquidity and profitability, यानी कि आप कैश को कितना हाथ में रखना चाहते हो, या आप जल्दी से कैश को you want your money to be liquidated. That means current liability cost is lesser than long term liabilities. ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इनटू डेब्ट एंड इक्विटी, जो हम अभी पढ़ेंगे एज ईपीएस। आप डेब्ट उठाना चाहते हो, इक्विटी में जाना चाहते हो, कितना करना चाहते हो, of the total long term finance, the proportions to be raised by debt or equity is also financial management decision. The amount of debt, equity, share capital preference are affected by financing decision. ऑल आइटम्स, ये आपका पेपर में आया हुआ एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। दिस आर कम इन द एमसीक्यू। ऑल आइटम्स इन द पी एंड एल, एग्जाम्पल इंटरेस्ट, एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, ये सब कुछ आपका जो है इट इज रिफ्लेक्टेड। हायर अमाउंट ऑफ डेट मीन्स हायर इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट का मतलब आपको रिटर्न भी करना है, दैट मीन्स आपको कैश इन हैंड भी रखना है। Similarly, use of higher equity may entail payment of dividends. अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि अगर आप पैसा इंटरेस्ट से उठाओगे तो इंटरेस्ट देना है, इक्विटी से उठाओगे तो डिविडेंड देना है। तो यू हैव टू थिंक which is right and how much is right, which is right and how much is right. Similarly, in expansion of a business which is a result of capital budgeting is also likely to virtually affect all items in P&L. So financial statements of a business are largely determined by financial management decisions, और यही होते हैं जो आप लोग अपने मतलब कि ट्रेडिंग या P&L या बैलेंस शीट में डालते हो, ये वही होते हैं जो आप लोग अपने प्रैक्टिकली बनाते हो, वो यहाँ पर आपका थ्योरेटिकल है, इन अनदर वर्ड्स। And this is one of the chapters which, if you are going for BCom, if you are going for MBA, anyway, if you are going for chartered accountancy, उन सब में ये वाला चैप्टर आपका बहुत important है, because this is actually the base. Similarly, the future financial statement would depend upon the past as well as the current financial decisions, यानी कि आपका planning. Thus, overall financial health of a business is determined by the quality of financial management. Good financial management aims at mobilization of financial resources at lower cost and deploying it in the lucrative activity. Already यहाँ मैं ऊपर बता चुकी हूँ ये वाला, lower risk and lower cost and better ROI, the same thing. So now सबसे पहला, उस दिन भी आपको बताया था, रिपीटेडली मैं आपको बता रही हूँ कि व्हाट इज द एम ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। प्लानिंग अलग है, मैनेजमेंट अलग है। प्लानिंग अलग है, मैनेजमेंट अलग है। मैनेजिंग का मतलब है जो चीज आपके पास है उसको कैसे संभालना। प्लानिंग आपका इज अ ब्लूप्रिंट फॉर द फ्यूचर, राइट? So it is maximizing the shareholders' wealth, यानी कि wealth maximization concept। और आज की डेट पर अगर आप 100 में से 100 कंपनी बोलोगे ना तो they only go for the wealth maximization। यानी ये कहाँ से पता लगता है? That is, ये पेपर में आया है इसलिए मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ, that is determined by the
प्राइस ऑफ द कंपनीज शेयर। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कैसे पता लग जाता है? कंपनी के जो शेयर्स की वैल्यू है उससे। द सेम एग्जाम्पल, इफ यू हैव इन्वेस्टेड 1000 रुपीज इन एनी शेयर एंड आफ्टर अ पीरियड ऑफ 3 years आपके शेयर की वैल्यू से 1000 से 5000 हो गया है। सीइंग द मार्केट, मतलब कि रुपी का मार्केट वैल्यू को भी लेकर, इट हैज मल्टीपल, दैट मीन्स आपका जो पैसा है उसकी वैल्यू बढ़ गई है। आप शेयर होल्डर हो तो यानी कि आपका वेल्थ मैक्सिमाइज हुआ है। दैट्स हाउ इट हैज टू बी डन। और उसके लिए हम लेते हैं द 3 बेसिक फाइनेंशियल डिसीजंस जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। दैट इज आपका इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड डिसीजंस। Now I'll not be taking this portion. It's not like anything is going to. This only explains, मैं आपको explain कर देती हूँ. I'm not reading it with the book. It only tells the same thing कि जो आपका मतलब कि how do we understand कि जो हमारा पैसा है उसकी वैल्यू बढ़ गई है। यानी कि जब आपकी शेयर की वैल्यू बढ़ जाती है तो that means your wealth has been, यानी उसके अंदर आपका कुछ वैल्यू ऐड हो गया है। एंड दिस इज हाउ, और ये ऐड क्यों हुआ है? क्योंकि जो बैकड्रॉप में आपने मूवी देखी, बहुत अच्छी लगी आपको मूवी, बहुत अच्छी लगी आपको, कॉस्ट्यूम्स बहुत अच्छे लगे आपको, जो मतलब कि उसके जो मतलब कि सिनेमेटोग्राफी था वो बहुत अच्छा लगा आपको। तो ये जो सामने आ रहा ना, उसके पीछे जो मेहनत है वो हमारे हैं फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड डिसीजंस। उनको हम बोलते हैं, अगर फाइनेंशियल डिसीजंस, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस एंड हमारा जो डिविडेंड डिसीजन है वो वाइसली लिया है तो नेचुरल है कि हमारा जो हमारी जो कंपनी है वो अच्छे से परफॉर्म करे। एंड अगर उसने अच्छे से परफॉर्म किया है तो दैट मीन्स उससे हमारे हमने जो पैसा लगाया है उसका आरओए हमारा अच्छे हो गया। और अगर हमारे आरओआई अच्छा हुआ है एंड हमारी कंपनी जो है अच्छा परफॉर्म कर रही है तो दैट विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज द मार्केट वैल्यू ऑफ अवर शेयर्स एंड दस हमारा जो हमारी मतलब कि व्हाट वी से वेल्थ मैक्सिमाइज होता है। सो दैट इज व्हाई वी नीड टू टेक decisions regarding finance, investment and dividend in the efficient manner। फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा था क्लास 12, इफेक्टिव वर्सेस efficient, effective versus efficient, if you remember. So what is effective? Effective means timely. And what is efficient? At the optimum utilization of resources, है ना? तो यहाँ पर भी वो जो कंसेप्ट है जो हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था वो यहाँ पर भी आएगा, क्योंकि ये हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। और मैनेजमेंट का एक सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। तो व्हेन द ऑल्टर मतलब कि व्हेन वी आर मेकिंग द एफिशिएंट डिसीजंस दैट वुड हेल्प द कंपनी टू ग्रो। So the 3 main decisions repeatedly told is financial, investment and dividend. So let us first come to financial decision। यानी फाइनेंस का मतलब हो जाता है आप अपने पैसे को कहां से लाओगे, बेस्ट फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव। Financial management is concerned with the solution of 3 major issues to the financial operations corresponding 3 questions. In a financial context, it means selecting the best alternative तो सबसे पहला हमारा है इन्वेस्टमेंट।
where do we invest? इस वाले में अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आया तो जो सबसे ज्यादा कॉमन आया है वो ROI वाला आया है। तो ये याद रखना, बिकॉज आई एम रिपीटेडली टेलिंग दिस, यू मे बी इवन फीलिंग वेरी बोर, बट दिस इज बिकॉज सम ऑफ द टर्म्स normally students forget it. A firm's resources are scarce in comparison to the uses to which they can be put. So it has to choose where to invest these resources so that they are able to earn the highest possible return. The investment decision therefore relates how the funds are invested in different assets. ये कोई एक दिन में एक इंसान कभी नहीं करता है. दिस इज अ, जो फाइनेंस मैनेजर होता है वो अपनी टीम के साथ ही गोज ऑन, ही वर्क्स ऑन डिफरेंट एरियाज, ही वुड बी टेकिंग डिफरेंट इन्वेस्टमेंट क्राइटेरियाज, एंड देन देर आर नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स, बहुत सारे कैलकुलेशंस होती है, और उसके बाद मतलब कि इट इज फाउंड कि विच शुड बी देयर. So when we are investing the money, it may be long term or short term. बेटा ये वाला जो वर्ड है ये आपके बार बार आएगा तो थोड़ा ध्यान रखना. It can be long term or short term. A long term is also called as capital budgeting. This is a question which has come in the paper. ये आपका पेपर है. लॉन्ग टर्म का जो इन्वेस्टमेंट है उसको हम कैपिटल बजटिंग के नाम से जानते हैं. Instead of saying long-term budgeting, we call it as capital budgeting because it involves committing the finance on a long-term basis, which means buying a new machine, replacing an existing, acquiring a new fixed. और ये वाला जो पूरा है, this has come as a case study. मतलब ये उसमें ये दिया गया था कि एक कंपनी है, I'll tell you what kind of question it comes. एक कंपनी है and they are deciding on some decisions, and then this paragraph was given कि उसके अंदर they were supposed to open a branch, they were also मतलब कि proposing to buy some new machinery. So which decision is being taken? Question क्या था? Which decision is being discussed? Which decision is being taken by the finance manager? So capital budgeting means buying a new machine or replacing an existing one, acquiring any new fixed asset, कुछ भी आपका, opening a new branch, etc. These decisions are very crucial since they affect the earning capacity in the long run. भाई आपने डाल दिया बना, मतलब आपने एक एसेट खरीद लिया, लेकिन इफ इट इज नॉट गिविंग यू द रिटर्न, उसका कोई यूज नहीं हो रहा, फिर तो वो जो पैसा आपने दिया वो ब्लॉक हुआ ना, पहली बात. दूसरा, कुछ एसेट्स आपके डेप्रिशिएट होते हैं, है या नहीं? जैसे आपने मशीनरी खरीदी तो वो तो डेप्रिसिएशन में जाएगा, यानी कि उसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी ओवर द पीरियड. So that is why it is very crucial. The size of the asset, profitability, competitiveness are all affected by capital budgeting decisions. These decisions, moreover, hold normally huge amount of investment are irreversible except at a huge cost. Unless and until, वही मैंने आपको बोला कि आप मशीन को बेच भी दोगे तो देन आपका डेप्रिसिएशन तो जाएगा ना. Even if you are buying a car on today's date, that's 20 October, and you are selling it on 30th October, within 10 days उसकी value कम हो जाए. You don't get the same amount what you have paid. Right? That's a simple fundamental principle. That's a simple principle. Therefore, once made, it is often almost impossible for a business to wriggle out of such decisions. Wriggle matlab पीछे हटना. Therefore, they need to be of utmost care. These decisions are
must be taken by those who understand them comprehensively. A bad capital budgeting decision normally has a capacity to severely damage the financial fortune of a business. Whereas आपका short term finance जो है, it is called as the working capital. यानी कि आपको कितना स्टॉक रखना है, द लेवल ऑफ स्टॉक, द लेवल ऑफ कैश, इन्वेंट्री, रिसीवेबल, द डे टू डे वर्किंग, इनके लिए यू नीड मतलब कि आपका लिक्विडिटी होना जरूरी है. These affect the liquidity as well as profitability of a business. Efficient cash management, this is the one which has come. Inventory management and receivable management are essential ingredients for the sound working capital management. ये आपका क्वेश्चन है. जैसे इसके अंदर ये आपका है, इसके अंदर ये है. मतलब शॉर्ट टर्म के लिए हमें क्या क्या देखना पड़ता है. हमें हैंड में कितना चाहिए, हमारा स्टॉक, क्योंकि अगर स्टॉक जो है वो रेगुलर नहीं रहेगा तो वो भी हमारी लिक्विडिटी को एज वेल एज हमारे प्रॉफिटेबिलिटी को भी मतलब इट इज गोइंग टू अफेक्ट. तो देयर शुड बी, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एक्सेस स्टॉक है एंड मतलब कि कैश मैनेजमेंट हमारा कम हो रहा है, एंड देन जो रिसीवेबल्स है हाउ मच इट इज देयर, यानी कि आप जो क्रेडिट अवेल कर रहे हो, क्रेडिट आप जो दे रहे हो, उसके बीच का जो डिफरेंस है वो भी हमको देखना है. और ये सब अगर हमारा बैलेंस है तो वी आर हैविंग द वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट. नो डाउट हमारे पास वी हैव सम रिसोर्सेस जो हमें वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को थोड़े टाइम के लिए हेल्प करता है. देयर आर सम व्हाट वी कॉल एज इंस्ट्रूमेंट्स जो इस वक्त आपके 12th से शायद हट चुका है, लास्ट ईयर तो नहीं था, इस साल आई, लेकिन देयर आर सर्टन दे बट देन anything which you take from outside will always increase the cost. आप 10 दिन के लिए भी लोन लोगे तो आपको इंटरेस्ट देना है. Even if you are taking a loan for 10 days, you have to pay the interest. So that is why we need to have a sound working capital management. तो लॉन्ग टर्म हमारा कैपिटल बजटिंग हमारा किसको कहते हैं, जो हम लोग एसेट्स में डाल रहे हैं. नाउ एसेट का मतलब सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स नहीं हो सकते, दैट कैन बी इवन एनीथिंग. आप रिप्लेस कर रहे हो या आप नया ब्रांच खोल रहे हो. ये जो वर्ड ब्रांच वाला है, यू विल बी सीइंग दिस इज देयर इन द क्वेश्चन आल्सो. दैट मींस दैट इज अ डिसीजन व्हिच इज ऑन अ लॉन्ग टर्म, एंड शॉर्ट टर्म इज आपके जो भी आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है. So now, first of all, we would come to the factors which affect the capital budgeting decision. यानी कि लॉन्ग टर्म हमें कौन कौन सी चीजों पर ध्यान रखना. एंड a number of projects are often available to a business to invest in. आप किस बिजनेस में हो, that depends on. Now, say you are in a, कोई भी आपका बिजनेस है, there are certain factors, but each project has to be evaluated carefully depending upon the returns. Particularly project is either selected or rejected, जो ऊपर आपको मैंने ROI बताया, right? If there is only one project, then we need to see the rate of return, investment, comparability with the industry's average is seen. But otherwise there are certain factors which affect. सबसे पहला cash flows of the project, यानी कि आपको जो है, if you are investing in any project, when a company takes an investment decision involving huge amount, it expects to generate some cash flows over a period. Maybe आपको cash receive आ रहा है and payments over the life of an investment. The amount of these cash flows should be carefully analyzed before considering the capital budgeting. कैसे? अब आपने एक प्रोजेक्ट शुरू किया, ठीक है, अब वो प्रोजेक्ट कितने टाइम का रहेगा, सबसे पहले मतलब उसका लाइफ कितने टाइम का रहेगा.
ओवर द पीरियड आपको कितना कैश फ्लो आने वाला है, एंड जो आप लगा रहे हो और जो आपको आने वाला है उन दोनों का प्रोपोर्शन कितना है. दिस हैज टू बी सीन. I'll give you one very weird but my own example. It's a very weird, but definitely it is my own example. I'll tell you what. And बिल्कुल इसी से regarding this year, that's the current year. Uh, if you all are here, that is only because of Aryan. I'll tell you that also. This year I was not supposed to start any class. I had thought that I'm not going to. I wanted to concentrate on certain other things. Right now, till last year things were different. This year I was मेरा एक dilemma था. And the dilemma what happens is कि time का जो constraints होता है, तो time constraint ये होता है कि I am keeping one time, students are having another time, so there is always a clash which results in many, फिर मुझे बड़ा frustration होता है. Definitely English and business studies या social science are ड्राई सब्जेक्ट्स, उसको ज्यादा लोग नहीं ले वो करते. तो मेरा ये था कि यार मैं क्या करूं, व्हाट टू डू. आई डिड नॉट वांट एक्चुअली, मैं नहीं करी. एंड देन एंड दैट वाज द रीजन कि आई डिड नॉट स्टार्ट 9th स्टैंडर्ड आल्सो. देन आई वाज थिंकिंग ऑन कि इफ आई एम स्टार्टिंग, तो डेफिनेटली वर्चुअल में मैं पढ़ा रही हूँ. वर्चुअल में पढ़ाने का मतलब क्या, आई नीड अ कंप्यूटर, आई नीड अ, मतलब मेरे पास एक टैब भी होना जरूरी है, एंड ऑफ कोर्स फॉर द कम्युनिकेशन आई नीड द फोन. नाउ माई दिस कंप्यूटर, जो ये मेरा कंप्यूटर है, विच इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, दिस लैपटॉप इट्स वेरी ओल्ड, इट्स 2017. ये तब था जब मैं वहां पे थी. तो एंड अभी ये मतलब ऐसा ही है, ये थोड़ा बीमारी रहता है. तो आई थॉट कि इफ आई एम बाइंग अ न्यू लैपटॉप, ये हमारा है कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट वाला जो मैं बता रही हूँ, मैं ये बता रही हूँ आपको. इफ आई एम बाइंग अ न्यू लैपटॉप, आई हैव टू कंपेयर, मतलब मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है कि नाउ मेरे बाकी दोनों प्रोडक्ट एप्पल है, तो मुझे इसको भी एप्पल में लेकर आने से मेरे लिए इजी क्या रहता है, वॉट एवर फाइल आई सेव इन वन डिवाइस इज ऑटोमेटिकली सेव्ड ऑन ऑल द टू डिवाइसेस, विच इज नॉट पॉसिबल विद विंडो. तो नाउ माई क्वेश्चन वॉज कि वॉट टू डू. अगर मैं एक लैपटॉप खरीदती हूँ, तो मिनिमम मेरे मतलब उसके अकॉर्डिंग इफ आई गो फॉर अ लैपटॉप, दिस विल कॉस्ट 80,000. ठीक है. नाउ द क्वेश्चन वॉज कि अगर मैं 80,000 इसमें लगा रही हूँ, ओवर द पीरियड में कितने साल पढ़ाऊंगी, अब आगे मैं कितने साल पढ़ाने वाली हूँ, व्हाट आई एम कीपिंग, व्हाट विल बी द लाइफ ऑफ माय प्रोजेक्ट. से इफ आई एम एंडिंग दिस ईयर, अगले साल मैं नहीं पढ़ाती हूँ, तो ये लैपटॉप तो मेरा आइडल हो गया, इसका मैं क्या करूंगी, व्हाट विल आई डू विद दिस, राइट. एंड इफ आई एम बाइंग इट, एंड इफ आई एम कीपिंग इट फॉर से 1 ईयर या मैक्सिमम नेक्स्ट ईयर भी रखती हूँ, तो एवरी मंथ व्हाट आई एम गोइंग टू गेट, मेरे पास एवरेज कितने बच्चे आ सकते हैं, और मैं इसको मतलब कि हाउ मच आई कैन अर्न. इफ आई एम इन्वेस्टिंग 80,000, तो ओवर पीरियड मेरे को कितना मतलब फायदा होगा, वेदर आई विल बी एबल टू वो 80,000 को मैं 2 साल में निकाल लूँ. दैट इज वॉट कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट 6. डोंट माइंड, बट दिस इज द easiest way to make you understand. मतलब हमारा पूरे 12 महीने में मेरे पास कितने बच्चे होंगे, तो वो कितनी फीस देंगे, तो वो उसको मैं 12 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर रही हूँ, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ से 2 years, इज इट गोइंग टू बी इक्वल, एंड इट शुड नॉट बी इक्वल, इट शुड ऑलवेज बी एक्सीडिंग. तो क्या वो जनरेट करेगा, और नहीं करेगा, तो यानी कि मैं जो इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ दैट्स वेस्ट. यही एक कंपनी करती है. when a company is investing in any project, now the projects may be different. एक आईटी के लिए प्रोजेक्ट इज उनको सॉफ्टवेयर डेवलप करना, फॉर अ कंस्ट्रक्शन कंपनी इट मे बी बिल्डिंग अप अ मॉल, राइट. यानी कि व्हेन दे आर
टेकिंग अप एनी प्रोजेक्ट दे हैव टू सी कि ओवर अ पीरियड उनको कितनी रेवेन्यू मिलेगी, कितना कैश हाथ में आएगा. देन द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. यही मैं आपको शायद बार बार बोल रही हूँ. You may even feel irritated कि मैम ये वर्ड क्यों बोलती हैं, because this is the one question which I have seen students missing out. The most important criteria is the rate of return of the project. And these calculations are made as per the assumptions. ये already I have done. Suppose there are two projects A and B, same risk. एक का 10% है और दूसरे का 12% है, तो अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांस प्रोजेक्ट बी शुड बी सिलेक्टेड. ये जो अंडर नॉर्मल है ना, ये बाकी जो हमारे जो मतलब कि हमने ये जो सोचे ना, ये उनको बोलता है. इट्स नॉट लाइक कि 12% आ रहा है, लेकिन रिस्क अगर ज्यादा है तो द इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व. मतलब एक तो पहला हमारा था कैश फ्लो हमें कितना मिल सकता है. सेकेंड इज व्हाट विल बी द लाइकली ROI. एंड थर्ड इज व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट में हमें क्या क्या हम मतलब कि व्हाट वी आर गोइंग टू. अब इन्वेस्ट करोगे तो कहीं ना कहीं से तो पैसा लाओगे, है ना, पैसा लगाओगे ना. तो दैट वुड इन्वॉल्व द कैलकुलेशंस रिगार्डिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट. अगर आप उसको कर्जे में ले रहे हो तो इंटरेस्ट रेट, कैश इनफ्लो, रेट ऑफ रिटर्न. इसका मैं एक और एग्जांपल अभी आपको बताती हूँ. देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स टू evaluate investment proposal, which are known as capital budgeting techniques, and these are applied to each proposal before selecting a particular project. For example, अब हमने ऊपर वाला एग्जाम्पल लिया, एक हमारा 10 है और एक में हमारा 12% है. ठीक है, अब हम नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में हम 12 को लेकर चल रहे हैं. राइट नाउ हमारे पास नीचे है अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, दोनों में हम सेम कर रहे हैं. इंटरेस्ट रेट, अब हमारा इस वाले में से हमारा जो कैश फ्लो है वो कम है, इसमें ज्यादा है, वो हमें देखना होगा. देन मान लो आप मतलब कि लेकर चल रहे हो, मे बी दिस प्रोजेक्ट इज ऑफ 2 years, ये हमारा 3 years का है, और जो आप इंटरेस्ट देने वाले हो वो इसमें कम दोगे और इसमें आप ज्यादा दोगे, मतलब जो आप कर्जा लेने वाले हो. देन यू हैव टू थिंक ऑन दैट क्राइटेरिया. आपको उस क्राइटेरिया को भी देखना पड़ेगा. नेचुरली 2 साल के लिए इंटरेस्ट और 3 साल के इंटरेस्ट में डिफरेंस आता है, तो यू नीड टू, ये सिर्फ ROI को नहीं देखोगे, आपको ये भी देखना कि आप कितना लगाने वाले हो. जब हम मोबाइल खरीदते हैं, एक बहुत ही सिंपल सा है, मतलब कई बार लोग मुझे कहते हैं कि मैं मोबाइल खरीदते हो तो EMI में खरीद लो. ओके, EMI में खरीद लो. जस्ट मोबाइल इज अ कैपिटल बजटिंग, मोबाइल इज अ लॉन्ग टर्म, मोबाइल इज एसेट. कुछ ही लोग होंगे जो कपड़ों की तरह मोबाइल बदलते हैं, नॉर्मली हम उसको यूज करते हैं. राइट, जब आप मोबाइल खरीदते से आप 15,000 का खरीदते हो, at the very lowest cost I'm taking. Now when you are buying it for 15,000 और आप उसका EMI लगाओ, कैलकुलेट करो उस EMI को. इवन बैंक के जो फॉर्मूला होता है ना, उसमें नीचे लिखा भी हुआ होता है आप कितना लेने वाले हो 15,000 का, और आप कितना दोगे ओवर अ पीरियड ऑफ 1 year 2 year, उसको देखो. नेचुरली यू माइट बी पेइंग 16,000 रुपीज. 15,000 की जो मोबाइल है वो 16,000 में करोगे. नाउ व्हेन यू आर बाइंग इट फॉर 16,000 रुपीज, एक साल में आपकी उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, मतलब आप उसको कितना यूज करने वाले हो, हाउ मच इट इज गोइंग टू बी यूजफुल टू यू. दिस इज द क्राइटेरिया वी हैव टू टेक. इट इज नॉट दैट कि EMI is only easy way to pay, but it is not the cheapest way to pay. कंपनीज जब इन्वेस्ट करती हैं तो दे ऑल्सो हैव टू लुक
even though they may be getting the money easily through equity or through debt, लेकिन कितना कॉस्टली पड़ेगा? इज इट इन द प्रोपोर्शन ऑफ द अमाउंट विच दे आर इन्वेस्टिंग, द मनी दे आर गोइंग टू गेट एज प्रॉफिट? क्या वो दोनों हमने जितना इन्वेस्ट किया उससे ज्यादा होगा, तब हम उस पर्टिकुलर कैपिटल यानी कि एसेट में इन्वेस्ट करते हैं. That is called, those are called as the factors affecting capital budgeting. और capital budgeting long term budget को बोलते हैं, not the short term. Right? ये याद रखना class 12 because is one of the MCQs. Capital का मतलब ही आप समझ लेना बड़ा. And capital budgeting means the budgeting for the long term investment. So that is for today.